Hello students, and welcome back to Abhigyan Academy. So in today's video, we will be discussing the next part of the chapter Sound and Waves. We had discussed the earlier half of the chapter Sound and Waves in one of the previous videos. In today's video, we will be discussing the later half of the chapter. Okay? Part 2 of the chapter. So let's begin. Alright. So what are the we've talked about sound waves, we've talked about waves. Okay? Now we have also seen the characteristics of a wave like amplitude, frequency, intensity, wavelength, crest, trough, your what the unit of these quantities and everything. Now, what are the types of waves that are there? So there are two types of waves: electromagnetic waves, which are also known as in short EM waves. EM stands for electromagnetic, and mechanical waves. ठीक है? अब EM waves क्या होता है? EM waves are nothing but forms of radiation. अब radiation क्या है? Radiation is anything that can move without a medium. Radiation ऐसा चीज है जिसको मूव करने के लिए बीच में किसी मीडियम का जरूरत नहीं है. रेडिएशन वैक्यूम के थ्रू भी मूव कर सकता है, खाली जगह में भी मूव कर सकता है. ठीक है? तो EM waves are nothing but a type of radiation. Now, what does this mean? It means that EM waves have the ability to move through vacuum as well. इसका मतलब देखो, जो सन का जो रे है, सन का जो लाइट है, इट इज नथिंग बट अ रेडिएशन. व्हाई? बिकॉज सनलाइट बिना किसी मीडियम के स्पेस के थ्रू अर्थ में आता है, एंड स्पेस इज अ वैक्यूम. ठीक है? वी ऑल नो स्पेस इज अ वैक्यूम. स्पेस डज नॉट हैव एनी मीडियम. सो सनलाइट इज नथिंग बट अ रेडिएशन. ठीक है? And what are these waves made up of? These waves, as the name suggests, electromagnetic. These waves are made up of two things. It is made up of electric fields and magnetic fields. Okay? Then we have the mechanical waves. Okay? Mechanical waves, the word mechanics means motion. Okay? Physical motion of anything. So mechanical waves basically is created by the vibration motion of particles. Sound is a mechanical wave. We studied about it. ठीक है? कि उसको मीडियम चाहिए. क्यों? क्योंकि वो मीडियम में जो पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करके एक दूसरे से टकराएंगे, when they will vibrate and collide with each other, and the vibration will move on, that movement will move on. By the virtue of that, the wave goes ahead. ठीक है? That is why mechanical waves need some kind of vibration or disturbance in matter. Also, they transfer energy through a material medium. Of course, उनका जो energy है, वो ऐसा खाली जगह से पास नहीं हो सकता. They need a medium. For example, sound. Sound is a mechanical wave. On the other hand, light is kind of an electromagnetic wave. Why? Because light can pass through vacuum as well. ठीक है? Light is a radiation. Now, mechanical waves के further दो सब types होते हैं: longitudinal waves and transverse waves. We already studied about longitudinal waves in the beginning, in the previous part 1 of the video. Sound is a longitudinal wave. मतलब जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन का डायरेक्शन और वेव के मूवमेंट का डायरेक्शन, both of them are parallel to each other. That is, the angle between both the directions is 0 degrees. On the other hand, in case of transverse waves, पार्टिकल का जो वाइब्रेशन का डायरेक्शन होगा और वेव के मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा, both the directions will be perpendicular to each other. Perpendicular मतलब there will be an angle of 90 degrees between the two directions. ठीक है? Now we will come to a concept called the simple pendulum. ठीक है? We will come to a concept called the simple pendulum. What is a simple pendulum? Let's have a look. ठीक है? कि ये simple pendulum होता क्या है? आपने अपने घर के वॉल क्लॉक में ऐसा चीज कभी ना कभी तो देखा होगा. ठीक है? जो ऐसे मूव करेगा, फिर वापस ऐसे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस अपने ओरिजिनल जगह पे आएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर. दिस थिंग, दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, ये जो एक चीज है, दिस इज नोन एज अ पेंडुलम. ठीक है? दिस इज नोन एज अ पेंडुलम. ठीक है? और पेंडुलम में हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग इन द पेंडुलम इज दैट कि इसका जो ओरिजिनल पोजीशन, ये जो इसका ओरिजिनल पोजीशन, दिस पोजीशन इज नोन एज द मीन पोजीशन.
ठीक है। अब मान लो ये पेंडुलम इधर गया, इधर जाके पेंडुलम यहां तक आ गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आ गया, ठीक है। इसके आगे ये पेंडुलम और गया नहीं, इस पॉइंट से ये पेंडुलम वापस अपने ओरिजिनल जगह पे आ गया। ये जो हाईएस्ट डिस्टेंस है ना, जो पेंडुलम अपना जो पेंडुलम अपने ओरिजिनल पोजीशन से गया है, दिस पोजीशन इज नोन एज द एक्सट्रीम पोजीशन। दिस पोजीशन इज नोन एज द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। दिस पोजीशन इज नोन एज द एक्सट्रीम पोजीशन। तो अब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं यहाँ। होता क्या है, पेंडुलम को जब आप ऐसे मूव करते हो ना, मूव करने के बाद ये जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है, इस पोजीशन पे पेंडुलम एक मिली सेकेंड्स के लिए पेंडुलम थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, लाइक then it will come back to the origin। मतलब हो क्या रहा है, this is the mean position say, and the pendulum goes up to the highest extreme position। Here the pendulum for a very momentary amount of time, like very little time, like fraction of seconds के लिए ये रुक जाएगा as in it will come to rest, its velocity will become zero, and again it will come back to the original position, then it will go here, same thing here, it will stop like this, like this, like this, like this, ठीक है। तो अब देखो, we know the formula of potential energy is mgh। I have already discussed this in one of my previous videos on work, power and energy, ठीक है। And the formula for kinetic energy is half mv square, ठीक है। मान लेते हैं mass of the pendulum is m, ठीक है। और ये m फॉर्मूला में डाल दिया, एम तो कांस्टेंट रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि पेंडुलम का मास अचानक से चेंज हो जाएगा या पेंडुलम का मास ऊपर नीचे हो जाएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। द मास ऑफ द पेंडुलम विल ऑलवेज रिमेन द सेम, सो मास इज कांस्टेंट। ऑन द अदर हैंड जी का वैल्यू क्या होता है, जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जी इज अनदर कांस्टेंट वैल्यू। इफ आई लुक एट पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला, m and g are constant, the only thing that can change is the height। और इस पेंडुलम का हाइट कौन से जगह पे सबसे ज्यादा होगा, ओरिजिनल पोजीशन से, एट द एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। एट द एक्सट्रीम पोजीशन, सिंस द हाइट विल बी मैक्सिमम हियर, बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। एक और चीज, एक्सट्रीम पोजीशन पे आने के बाद, एक्सट्रीम पोजीशन पे आने के बाद ये मोमेंटरीली थोड़ी देर के लिए पेंडुलम रुक जाता है का मतलब the velocity becomes zero, it comes to rest, ठीक है। अब अगर velocity जीरो हो गया है तो v जीरो हो जाएगा, and kinetic energy at the extreme position will become total half m into zero square, it will become zero। तो kinetic energy here at the extreme position is zero, ठीक है। I hope you have understood this much, ठीक है। Now एक और चीज, ये there is something known as a restoring force। Now what is a restoring force? See, try to understand। मान लो मैं इस चीज को यहां तक ले गया, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है, इसको मैं यहां पे ले गया, इसका पोजीशन चेंज कर। अब इसको अगर मैं इसके नए पोजीशन से ओरिजिनल पोजीशन में अगर रिस्टोर करना मतलब वापस भेजना, मतलब रिस्टोर समथिंग मींस कि जो जैसा है उसको वैसे का वैसा बना देना फिर से। तो मान लो ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है, मैंने इसको धक्का मार के एक नए पोजीशन पे डाल दिया। तो नाउ if I have to bring back this thing from the new position back to the original position, if I have to restore this to the original position, I have to apply a force to bring it back to the original position, right? तो ये इसका पोजीशन रिस्टोर करने के लिए मैं जो फोर्स यूज कर रहा हूं, दिस फोर्स इज नोन एज अ रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब देखो, और अगर ये यहां से इतना दूर गया, थोड़े फोर्स से ही वापस आ जाएगा। अगर अपने ओरिजिनल जगह से ज्यादा दूर गया तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रिस्टोर करने के लिए इसको अपने जगह पे, है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन से ओरिजिनल पोजीशन से जितना दूर होगा,
उसको वापस अपनी जगह पे लाने के लिए उतना ही ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स देना पड़ेगा। इन अ पेंडुलम, इफ आई सी इन अ पेंडुलम विच इज द पोजिशन इन विच दिस पर्टिकुलर पेंडुलम इज फारदेस्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। अपने मीन पोजिशन कौन सा ऐसा जगह है जहां पे पेंडुलम अपने मीन पोजिशन से सबसे ज्यादा दूर है? इट इज द एक्सट्रीम पोजिशन। एक्सट्रीम पोजिशन सबसे दूर का जगह है उसके ओरिजिनल मीन एरिया से, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सट्रीम पोजिशन से उसको वापस लाने के लिए अपने जगह पे मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये अगर यहां पे होता तो थोड़ा फोर्स चाहिए होता, बट ये सबसे दूर का जगह ये है एट द एक्सट्रीम पोजिशन, इसलिए सबसे ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स एक्सट्रीम पोजिशन पे चाहिए होता है उसको अपनी जगह पे वापस लाने के लिए। दैट इज वाई इन एक्सट्रीम पोजिशन द रिस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द मीन पोजिशन। जब पेंडुलम यहां पे रहता, ठीक है, यहां पे देखो पेंडुलम जब ऐसे आता है ना यहाँ पे, इस जगह पे पेंडुलम का वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होता है अपने ओरिजिन, क्योंकि पेंडुलम यहां से आके फिर ऐसे उठेगा ना, ऐसे आके फिर से ऐसे उठेगा। तो जब यहां से वो इस जगह से पास करता है ना, यहाँ पे इसका वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होता है। अगर वेलोसिटी यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है, ठीक है, अगर वेलोसिटी यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, वी इज मैक्सिमम हियर, so kinetic energy will be maximum at the mean position. Kinetic energy will be maximum at the mean position. Then let's look at potential energy. यहां पे इसका हाइट था, ठीक है, बट अब ये वापस अपने जगह पे आ गया है, तो हाइट का क्या हुआ? हाइट जीरो हो गया। पोटेंशियल एनर्जी में एच जीरो हो गया, एम जी इंटू जीरो, आंसर विल बी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इन मीन पोजिशन इज जीरो। दूसरा चीज, दूसरा चीज ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स मेरे को तभी लगाना है ना जब ये अपने जगह से दूर हो, बट जब ये अपने ओरिजिनल जगह पे वापस आ गया उस टाइम तो रिस्टोरिंग फोर्स देने का और जरूरत है ही नहीं मेरे को। व्हाई डू आई नीड टू रिस्टोर इट? इट इज ऑलरेडी बैक इन द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इन द मीन पोजीशन रिस्टोरिंग फोर्स इज आल्सो इक्वल टू जीरो, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर थिंग, वी नो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ दैट F इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, F इक्वल टू ma और m इनटू a, ठीक है। नाउ सी, यहां जो फोर्स हो रहा है, द रेस्टिंग जो रिस्टोरिंग फोर्स है, दिस F इज आल्सो नथिंग बट मास ऑफ द पेंडुलम मल्टीप्लाइड बाय द एक्सीलरेशन ऑफ द पेंडुलम व्हिच इज a, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? F इक्वल टू ma, m तो जो मास है पेंडुलम का वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर फोर्स को मैक्सिमम करना है तो एक्सीलरेशन को मैक्सिमम होना पड़ेगा इस प्रोडक्ट में, मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। अब अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स मैक्सिमम है, इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, मास तो चेंज नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्सीलरेशन इज आल्सो मैक्सिमम। एंड एट द मीन पोजीशन जहां पे फोर्स जीरो है, रिस्टोरेशन फोर्स जीरो है, मास तो जीरो हो नहीं सकता, मास इनटू एक्सीलरेशन है ना, मास तो जीरो हो नहीं सकता, वो कांस्टेंट है, तो जीरो क्या होगा? एक्सीलरेशन जीरो होगा। दैट इज व्हाई एट द मीन पोजीशन एक्सीलरेशन इज आल्सो जीरो, ठीक है। Acceleration is also zero. So this is how the motion of a simple pendulum works. It is a very conceptual thing to understand actually, and I hope that this has somewhat cleared your concept and you can move ahead with that. Now एक बार ये slide देख लेते हैं, the difference if the particle is at extreme position, if the particle is at mean position. As I said, extreme पे acceleration, it's a for revision, चाहो तो you can screenshot this. Acceleration is maximum at the extreme, acceleration is zero at the mean position. Why? Because force, restoration force is zero at mean and maximum at extreme position. And of course F equal to ma, m तो कांस्टेंट रहेगा और a जहां पे मैक्सिमम होगा F भी वहीं पे मैक्सिमम होगा। So in the extreme, if acceleration is maximum, force will also be maximum, whereas in the mean position acceleration is zero, so force will also be zero. Coming to the velocity, वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है,
मतलब जब वो यहाँ से यहाँ वापस आ कैसे जाएगा ना, जब वो ये जगह पास करेगा, जब यहाँ आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी इसका सबसे ज्यादा होता है। तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, और सिंस एक्सट्रीम पे आके थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, इसीलिए एक्सट्रीम पे द वेलोसिटी इज जीरो। अब अगर वेलोसिटी एक्सट्रीम पे जीरो है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर विल आल्सो बी जीरो एट एक्सट्रीम। And at the mean position, if v is maximum, velocity is maximum, then half mv square also will also be the maximum. So kinetic energy at mean position is maximum. Potential energy एक्सट्रीम पे मैक्सिमम क्यों होता है? बिकॉज द हाइट इज मैक्सिमम देयर, ठीक है। एंड मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम या फिर जीरो होता है। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे हाइट सबसे कम होता है, हाइट सबसे कम होता है। नाउ we'll look at something called time period of pendulum. What is time period of a pendulum? Please do not confuse time period with frequency. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में या पर यूनिट टाइम में एक वेव का कितना सारा ऑसिलेशंस हुआ है। अगर 10 सेकंड में 20 ऑसिलेशंस हो रहा है, तो 20 डिवाइडेड बाय 10, एक सेकंड में 2 ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है। एक सेकंड में 2 ऑसिलेशन हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी विल बी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस दैट टेक प्लेस इन 1 यूनिट टाइम और 1 सेकंड, यूजुअली सेकंड में लेते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड होता है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया कि एक सेकंड में आप कितना सारा ऑसिलेशन कर रहे हो, ठीक है। बट जितने भी ऑसिलेशन आप कर रहे हो, उसमें से किसी एक ऑसिलेशन को पूरा करने के लिए, जस्ट वन ऑसिलेशन को पूरा करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, दैट टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड, ठीक है। सो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम कैन बी डिफाइंड एज द टाइम टेकन फॉर द पेंडुलम टू कंप्लीट वन सिंगल कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। अब टाइम पीरियड इज रिटन एज कैपिटल टी, ठीक है। अभी हम लोग, एक डिराइवेशन है यहाँ पे, इट्स गिवन हियर आल्सो, बट आई विल शो इट टू यू इन द बिगर पिक्चर, ठीक है। एक 1 मीटर लंबा पेंडुलम है, मान लो मैंने दिखाया था ना, एक पेंडुलम लटक रहा है, तो वो जो लटक रहा है उसका लेंथ मान लो 1 मीटर है। तो एक 1 मीटर लंबे पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड एज इट, एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए एक 1 मीटर लॉन्ग पेंडुलम को कितना टाइम लगता है, ठीक है। दैट इज टाइम पीरियड ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग पेंडुलम। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर एल बाई जी, ठीक है। एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, pi is the pi 3.1422/7 whatever you call it, and t is the time period, ठीक है। अब since time period is time taken, ठीक है, it's a type of time, so the unit will for time period will be seconds, ठीक है। तो फॉर्मूला में हमने वैल्यूज बिठा दिए। 1 मीटर लॉन्ग पेंडुलम है, 1 मीटर लॉन्ग पेंडुलम है, तो एल का वैल्यू 1 होगा, लेंथ 2 पाई 2 into 3.14, and acceleration due to gravity is 9.8. For an approx and easier calculation, it has been rounded off to 10 here, ठीक है। But there is one request I would like to make everyone. Whenever you will solve a question in your question paper, अगर क्वेश्चन में अलग से स्पेशली मेंशन करके रखा है that yes, if you want, you can take the time as, sorry, you can take the value of small g as 10 meter per second square, then you do that. I don't have any problem with that. But अगर क्वेश्चन पेपर में अलग से मेंशन नहीं किया गया है कि g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट ले सकते हो, देन यू विल टेक द वैल्यू ऑफ g ओनली एंड ओनली एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो चाहे डेसिमल से जितना दिक्कत हो तुमको, तुमको लेना पड़ेगा। अगर स्पेशली मेंशन है कि 10 ले सकते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज नो। अब अगर मैं वैल्यूज को डाल के कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे, तो t का वैल्यू नियर अबाउट 2 सेकेंड आता है, अप्रोक्सीमेटली 2 सेकेंड आता है। तो इसका मतलब क्या है कि द टाइम पीरियड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग पेंडुलम इज 2 सेकेंड्स। दिस मीन्स कि अगर एक 1 मीटर लंबा पेंडुलम है, उसको एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए 2 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, सिंस इसको 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है, वी हैव गिवन इट स्पेशल नेम।
Since a 1 meter long pendulum takes 2 seconds to complete an oscillation, it has a time period of 2 seconds. It has a special name. The special name given to it for this purpose is second pendulum. So the reason why is a 1 meter long pendulum called a second pendulum, because it takes 2 seconds as time period, 2 seconds to complete one oscillation. Because the same derivation is given here. You can see. Now we will look at this thing. देखो साउंड जो है ना, साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं. साउंड जो होता है वो एक जगह से ऐसे ऐसे बहुत बार रिफ्लेक्ट होके जा सकता है. हमने रिवर्बरेशन में पढ़ा था. इफ यू चेक माय लास्ट वीडियो यू विल फाइंड आउट. ठीक है. तो साउंड को कैसे कैसे हम लोग रिफ्लेक्शन से यूज कर सकते हैं. देखो ये वाला जो माइक टाइप का एक चीज होता है जो क्राउड्स में यूज होता है. होता क्या है, जब अब ये इसको मेगाफोन बोलते हैं, या फिर इट इज आल्सो सीन इन थिंग्स लाइक हॉर्न्स, ट्रम्पेट, शहनाई वगैरह जो भी होता है. ठीक है. होता ये है कि बहुत लोग है ना, आपको साउंड एक ही डायरेक्शन में डायरेक्ट करना है. आपको मेक श्योर करना है कि साउंड प्रॉपरली रिफाइंड तरीके से एक ही दिशा में जा रहा है, इधर उधर फैल नहीं रहा है साउंड. यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट. तो होता क्या है, आप जब ऐसे किसी चीज से बोलते हो ना, वो साउंड क्या होता है, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होते 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 एक प्रॉपरली इस पर्टिकुलर शेप में इसी डायरेक्शन में निकल के जाता है. ठीक है. दूसरा है स्टेटोस्कोप. स्टेटोस्कोप सबको पता ही होगा. इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू लिसन टू योर हार्ट बीट. एक ह्यूमन हार्ट एक सेकंड में 72 मिनट बीट करता है ऑन एन एवरेज. अगर हम स्टेटोस्कोप से सुनेंगे तो विल डॉक्टर्स गेट एन आइडिया वेदर आवर हार्ट इज वर्किंग प्रॉपर्ली और बीटिंग प्रॉपर्ली और नॉट. ठीक है. तो स्टेटोस्कोप में क्या होता है, इट इज प्रेस्ड अगेंस्ट योर हार्ट, और जो हार्ट बीट का साउंड है इट गेट्स रिफ्लेक्टेड multiple times and it reaches here, and this thing gives you the sound in your ears. ठीक है. Now the last one, curved ceilings. हमारे पूर्वजों ने जब मंदिर, मॉस्क, चर्चेस, गुरुद्वारा ये सब बनाए होंगे, ऊपर उन लोगों ने वो डोम देना क्यों शुरू किया, कभी सोचा है? They always have they had their reasons for that. Now why was this dome given? See, these places, temples, mosques, churches, gurudwaras, ठीक है, these places are supposed to be places of public gatherings. ठीक है. गाना होता था, कॉन्सर्ट्स होते थे, पूजा होता है, हवन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, ये होता है, वो होता है. these are places of public importance. ठीक है. एंड इवन नॉट जस्ट इन टेम्पल्स, इवन इन प्लेसेस लाइक कॉन्सर्ट हॉल्स एंड ऑल, आप देखोगे ऊपर की तरफ डोम्स टाइप का कैसा कर्व्ड शेप है. क्यों होता है? बिकॉज दीज आर पब्लिक प्लेसेस. एंड अब देखो सब लोग जा रहे हैं वहां पे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि कोई आदमी बोल रहा है वहां पे और सिर्फ गिने चुने लोगों को सुनाई दे बात, हर जगह उसका आवाज पहुंच ही नहीं रहा है. इट्स रॉन्ग, राइट? तो सारे पब्लिक को आवाज इक्वली सुनाई दे, इसीलिए वो कर्व्ड रहता है. होता क्या है कि ये जो कर्व्ड सीलिंग है ना, जब भी लोग बोलेंगे, जब भी लोग बोलेंगे तो क्या होगा, मेरा आवाज ऊपर के कर्व सीलिंग में जाके हिट करेगा. ठीक है. और वो कर्व सीलिंग में लग के ऐसे 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 करके आवाज फैल जाएगा इन अ कर्व वे एंड इन अ यूनिफॉर्म मैनर, ताकि सबको सुनाई दे. दैट इज अनदर पर्पस ऑफ multiple reflections of sound. Now let's have a look at this question here. The audible range of sound for human beings extends from about 20 hertz to 20,000 hertz. Yes, this is a correct statement. We studied about it yesterday. Audible range हमारा 20 hertz to 20,000 hertz और 20 kilohertz तक होता है. ठीक है. And if it's below 20 hertz, we call it infrasonic sound. Above 20 kilohertz or 20,000 hertz, we call it ultrasonic sound. वो हम सुन नहीं पाते. हाँ, there's an exception कि children up to the age of 5, sometimes they are able to hear up to 25 kilohertz or 25,000 hertz. But हम जैसे adult normal average human beings, we cannot hear. Sound frequencies below 20 hertz are called infrasonic sound. Yes, correct. Frequencies higher than 20 kilohertz are called ultrasonic sound or ultrasound. This is also correct. Correct answer is option D, 1, 2 and 3. There was another question that we had to discuss. It was mentioned in the part 1 of the video. It's regarding echoes and reverberations. Yeah, this particular question. The question asks to identify the correct statement. Once again, the first statement says the repeated reflection of sound
that results in the persistence of sound is called reverberation. Yes, like you say hello and hello, 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 hello. ये जो persistent है, ये sound persist कर रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार repeat होकर आ रहा है. This is called reverberation. Yes, we studied about it. You can check it in the first part of the chapter. Then rolling of thunder is due to successive reflections of sound. Yes, sound जब बादल से हमारे तक एटमॉस्फेयर के थ्रू आता है, साउंड बहुत बार रिफ्लेक्ट होता है. दैट इज व्हाई थंडर हैज अ वेरी रोलिंग साउंड. ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट इज an echo is a sound caused by the reflection of sound waves from a surface back to the listener. Yes, once again it's true. Echo क्या है? तुमने बोला, वो जाके एक सरफेस को हिट किया, वापस तुम्हारे पास ही आ गया, तुमको वो अपना आवाज दोबारा सुनाई दी. That is called echo. 3 is correct as well. So the correct option is option D, 1, 2 and 3. ठीक है. So that is it for today's video. I hope it was a helpful video for all of you. I hope all of you are studying well for your exam. If you have liked the video, kindly like, share and comment the video on the video. ठीक है. I'll see you guys again soon in another video. ठीक है. Whenever it is, that is. Until then, have a good day. Take care. Goodbye. Jai Hind.